Prime Minister Narendra Modi turns 75. He has spent 24 years holding constitutional positions, 13 as Chief Minister of Gujarat, and over 11 years now as the Prime Minister of India. It is indeed a rare feat. In his speeches, he often speaks of turning resolve into success. And if one were to look at his life, it is a story of steely resolve, emotional depth, hard decisions, relentless effort, and pure unapologetic politics. His political journey is like a cinematic script where time has written multiple roles for him, and he has embodied all these roles. राष्ट्र का विकास, ये हमारा विकास का मंत्र हो। 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है। And today, he stands among the most powerful, visionary, and popular leaders of the world. He is the first Prime Minister born in independent India, the first non-Congress Prime Minister to complete 2 consecutive terms, and now the second Indian leader to begin a third. The nation has seen tears in his eyes several times. समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति और परिवार का छोटे से छोटा बच्चा समान रूप से ये भाव व्यक्त करता है, तो मुझे लगता है कि पहला मुझसे कोई गलती ना हो जाए, दूसरा मेरे मन में भाव रहता है, हो सकता है मेरी मां ने मुझे जन्म दिया, परमात्मा ने स्वयं ने मुझे किसी काम के लिए भेजा। And we have seen him roar when the nation was challenged. घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। We have seen him connect with people amid chants of his name echoing like a mantra. एक बेटी बहुत बढ़िया पेंटिंग बना करके लाई थी। बेटा वो पेंटिंग मुझे मिल जाएगी, आपने उसमें पता लिखा है अपना? ये कैसे कर दिया? अच्छा लिख करके दे दो, मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा। बहुत बढ़िया चित्र बनाया आपने। On the global stage, we have seen him shake the status quo. मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। Under his leadership, the Ram Mandir was built in Ayodhya, the tricolour hoisted at Lal Chowk in Srinagar. Rural India transformed through Jan Dhan and Ujjwal Yojana, and foundation was laid for Atmanirbhar Bharat. देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। At 75, in the second year of his third term, he's still relentless. How does he stay so driven? परिश्रम में जो तपा है, उसने ही तो इतिहास रचा है। जिसने फौरादी चट्टानों को तोड़ा है, उसने ही समय को मोड़ा है, और समय को मोड़ देने का भी यही समय है, सही समय है। Time is moving forward,
and Prime Minister Modi is moving with it. He's not chasing destinations. He's walking the journey one milestone at a time. It all began with a childhood dream. His struggles and effort powered that dream and eventually brought him to 7 Lok Kalyan Marg, the Prime Minister's office. But this journey had its share of ups and downs. 75 years ago, in the land that carries Mahadev's heritage and Tansen's melodious legacy, the third son of Damodar Das Modi was born, and this man went on to give this city a new identity. बड़ी बड़ी शख्सियतों के पैतृक आवास को स्मारक बनाने के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अब एक ऐसे प्रधानमंत्री की कहानी भी सुनिए जिसकी शुरुआत एक 50 गज के घर से होती है। ये वही जगह है जहां पर नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। आज इसे कुछ ही महीनों पहले तोड़ना पड़ा है क्योंकि आसपास के इमारतों पर इसके जर्जर हालत का प्रभाव पड़ रहा था। बहरहाल आप सोचिए कि कितनी कठिनाई से, कितनी कठिन परिस्थितियों से, कितने सीमित दायरे से निकलकर एक व्यक्ति की उड़ान आसमान को पार कर। One of 6 siblings, Modi's childhood was spent in poverty. हमें गरीबी क्या होती है वो देखने के लिए जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने बचपन गरीबी में बिताया है। शाम को जब घर में चूल्हा न जले, बच्चे रात रात रोते रहें, तब पता चलता है गरीबी क्या होती है। His father ran a tea stall and Narendra Modi helped. यहाँ से करीबन 200 मीटर इनकी स्कूल है। यहाँ ये रेलवे स्टेशन में इनके पिताजी की कैंटीन चलती थी। तब वो स्कूल से जब छूटते थे, रिसेस होती थी, तब वहाँ से सीधे अपने पिताजी को चाय के धंधे में मदद करने के लिए यहाँ आते थे। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। अब किसी के गले नहीं उतरेगा ये, लोगों के घर में। इसलिए खाने का कोई बचना जो अच्छा मैं कभी बता करके नहीं जाता था, जाता था, पड़ा है तो खाता था, वरना चला आता था। ऐसे जिया हूँ। Everything about his life was ordinary except his will. સાચા બોલો છે, એનામાં કોઈ કૂડ કપટ નથી. એના માને બાપ નથી ગણતો અને સમાજની પબ્લિક બેન સરખું જ ગણે છે. કોઈ भेदभाव नहीं। शक्ति है, वो कोई स्वार्थी नहीं है, वो सब सेवा करते हैं। स्कूल के अंदर हमने अच्छी तरह से सभी में पार्ट लिया था। रमत गमत में भी पार्ट लेता था, नाटक चेटक में भी पार्ट लेता था, और कहीं न कहीं कोई न कोई लेखन स्पर्धा हो तो उसमें भी पार्ट लेते थे। फिर कॉलेज में तो वो हमने नाटक एक साथ किया, पगरखानो पाड़ियो। पगरखा એટલે जूते, गुजराती में पगरखा बोलता है। एक दिन बापू बाहर बैठे थे तो उनकी मोजड़ी एक कुत्ता ले गया, तो उसके ऊपर आकर पूरा नाटक था, और वो एमएन कॉलेज में हमने बहुत अच्छी तरह से पेश किया था। तो उनको बार बार तालियां बजती थी, तो वारंवार वंस मोर होता था। अच्छा, तो उसमें हम 8-10 मित्र थे और नरेंद्र भाई बापू बने थे। मैं इस समय अहमदाबाद के वडनगर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, जो बचपन में नरेंद्र मोदी के जीवन यापन का जरिया था। आज इस स्टेशन की, इस शहर की पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ी है। यहीं पर उनके पिता चाय की दुकान लगाया करते थे। ठीक उसी जगह पर अब कुछ मरम्मत करके उस स्थान को रख दिया गया है, लेकिन यहाँ पर उनके पिता चाय बनाते थे। नरेंद्र मोदी बचपन में चाय को लेकर ट्रेनों में सवार यात्रियों को बेचा करते थे।
और इसके ज़रिए जीवन यापन उनका होता था। यहाँ से उनकी कहानी की शुरुआत होती है। ये कहानी बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन ये कहानी है संघर्ष की, तो ये कहानी है उम्मीद की।